हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Environmental impact. What is the environment impact here? The Himalaya regions, there is the most important here. The impact of the environment in Himalaya, there is the most important here. The settlement of the people in any regions is very much development on it is an environmental condition. The environment condition is the most important to people. The environment is taken as the surrounding or condition in which the various species, man, animal, and plants exist and function. The environment mainly is comprised of the elements such as the climate, landscape, river, species of plant and animals, flora and fauna, etc. Now let us see how the environment has influence in the life of the people and their history, science, ascent, past. A semi-arid region is an advantage to the people for a settlement purpose. For example, the Sindh regions having these types of climate in the sand period or resulted in the flourishing is a Harappa civilization. It has also helped the growth of urban settlement. Similarly, there is a rise of the Patliputra and the importance of Magad in a Bihar can also be explained in the relation to the physical feature and environment. And Patliputra was surrounding by there is a rivers, namely to the Ganga, Son and Ghatak, and which provide to the natural defense as well as internal communication. Moreover, there is a fertilized Indo-Gangotri's plan helped in there is the maintenance of the strong population base. The environmental condition also determine their source potential of regions and the forested is a region can be a rich source of timber. Whereas to the coastal regions is a yard there is sea product. The hilly regions with the rock containing the minerals ores and as a can lead to there is a development of metallurgy and the extractions of metal and their use for a tool and other purpose may be added to their standard of living. For example, Magad was localized in their proximity to the caverns, ores, mines, and source of stone and timber in the regions of their the Chota Nagpur is a plateaus. This is strengthening the position of the Magad. The substance is a pattern is also influenced by the environmental condition and the regionals is covered by the river plain have a alluvial soil. The fertility of the soil is helped in the surplus and production. The types of soil also determine the crop pattern. For example, black soil is good for the growing of cotton. The surplus is the production result exchange activity which is the development is a trade on large scale. On the area is gifted with the is navigables is a river has a well developed trade and communication network. Our ancient literature like the Jataks as other texts is a mention is a many reverence route in the ancient India. Similarly, the coastal route is a promote there is a long distance trade with the different countries. The mountain pass are also very important in this context. For example, the Palghat Pass linked it to the east and west coast and thus there is a help in the growth of Indo-Romans trade in ancient time. And thus we find that is a physical feature and environmental help us to the unfolded historical process of the religions and the diversity of India is a subcontinent present on the uneven pattern of historical development. The area which is where rich as a become important will those with the less sources is lagged behind. It is important to the observe that the settlement pattern and made of the life depend on the local resource is utilization which in their turn to dependent on the technological development in that region. There is a most important here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आ गया है अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट पर्यावरण का प्रभाव। देखिए
हिमालय क्षेत्र के आसपास जो है पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये जानना हमारे लिए बहुत काफ़ी रोचक रहेगा कि पर्यावरण का जो है हिमालय क्षेत्र में कैसा प्रभाव रहता है और क्या ये जीवन के लिए पर्याप्त जो है कंडीशन देता है। तो ये सब बातें जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। हमने हर बात पे चर्चा यहाँ पर किया है कि उत्तर भारत के नदी तटीय क्षेत्र मैदान कैसा था, पर्वतीय पठार कैसा था। अगर हम पर्यावरण के प्रभाव नहीं जानेंगे तो ये हमारा टॉपिक अधूरा रह जाएगा। तो ये जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा कि पर्यावरण का वहाँ पर किस प्रकार का प्रभाव रहता है हिमालय क्षेत्रों में। किसी भी क्षेत्र में लोगों के आवास की स्थिति इस बात पर निर्भर करता है कि उस स्थान की परिवेश यानी पर्यावरण की स्थिति कैसी है। देखिए, कोई भी जीवन पर प्रभाव तो जनरली सी बात है वहाँ के पर्यावरण पर ही पड़ता है और पर्यावरण के कारण जो है इंसानों में पड़ता है। तो कोई भी क्षेत्र में अगर इंसान रहेगा कि नहीं रहेगा, इसका पर्यावरण का प्रभाव 100% पड़ता है। और पर्यावरण हमारे आसपास के परिवेशों की स्थिति और वातावरण होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की जातियाँ, मानव, पशु और पेड़ पौधे जीवित रहते हैं और वहाँ पर वो अपना काम भी करते हैं। पर्यावरण मुख्य रूप से किसी स्थान का वातावरण, भूभाग, पेड़ पौधे और पशु यानी वनस्पति और प्राणी जगत आदि के शामिल होते हैं, यानी फ्लोरा और फौना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि प्राचीन काल से लेकर आज तक पर्यावरण ने लोगों के जीवन और इतिहास को किस प्रकार प्रभावित किया है। लोग स्थायी आवास के लिए जो है अर्ध शुष्क क्षेत्र अधिक उपयोगी होते हैं। उदाहरण के लिए सिंध क्षेत्र, जहाँ पर प्राचीन काल में इसी प्रकार के वातावरण रहा है, में जो है समृद्ध हड़प्पा सभ्यता विकास भी हुई है और इसने शहरी आवास विकसित करने में भी सहयोग दिया है। यानी इसने शहरी आवास को विकास करने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी प्रकार बिहार में पाटलिपुत्र का विकास और मगध के महत्व को भी वहाँ की भौगोलिक विशेषताओं और पर्यावरण के जो है मद्देनजर इसके परस्पर संबंधों के अनुरूप परिभाषित किया जा सकता है। पाटलिपुत्र गंगा और सोन और गंडक नदी से जो है घिरा था। जिन्होंने इस स्थान को जो है नैसर्गिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ जो है आंतरिक संचार की सुविधा को भी उपलब्ध करवाई थी। इसके अतिरिक्त उपजाऊ जो है सिंध गंगा के मैदान क्षेत्र ने भी यहाँ धनी आबादी के विकास बनाए रखने में सहायता किया है। अगर आपको समझ हो इस बात का हो कि इंसान वहाँ निवास करते हैं जहाँ पर उनको हर तरह के जो है पर्यावरण संतुलन मिलता हो, वहाँ पर रहने लायक स्थिति हो, तो ऐसे क्षेत्र जो होते हैं काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र में भी आ जाते हैं। और यहाँ पर जो है काफ़ी उपजाऊ होने के कारण धनी आबादी होना एक स्वाभाविक बात रहती है। पर्यावरणीय परिस्थिति किसी भी क्षेत्र के संभावित संसाधनों को भी निर्धारित करती है। कहते हैं वनांचल क्षेत्र यानी वनांचल क्षेत्र लकड़ी का बड़ा स्रोत हो सकते हैं, तो समुद्री तटीय क्षेत्र जो है समुद्री उत्पादों के स्रोत भी हो सकते हैं। चट्टानों में जो है भरपूर पहाड़ी क्षेत्र जिनमें जो है खनिज अयस्क यानी कच्ची धातु भी सम्मिलित है, धातु विज्ञान के विकास में सहायक हो सकता है। जैसे मगध जो है लोहे की कच्ची खानों के नज़दीक और छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में पत्थरों के स्रोत यानी उद्गम स्थानों और लकड़ी के क्षेत्र के नज़दीक स्थित होते हैं। तो बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं उन क्षेत्रों में लगाए जाते हैं जहां पर कच्चे माल जो है आसानी से उपलब्ध हो। इसलिए सबसे अच्छा यहाँ एग्जाम्पल है जो आपके समक्ष था, मगध लोहे की कच्ची खानों के लिए जाना जाता है और छोटा नागपुर जो है पत्थरों के जो स्रोत के रूप में जाना जाता है। उसी तरह जो है सबका अपना अपना एक विशेष स्थान रखता है। इस वजह से जो है मगध की स्थिति बहुत काफ़ी मजबूत हो जाती है। जीवन के रहन सहन और जो है आहार व्यवहार भी पर्यावरणीय परिस्थिति में प्रभावित होते हैं। नदी के मैदानी क्षेत्र में जो कछार वाली मिट्टी बाढ़ से प्रभावित होती है, यानी कछार वाली मिट्टी जो होती है काफ़ी बाढ़ के कारण ये काफ़ी प्रभावित होती है और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति जो है अधिक पैदावार में सहायक भी होती है। मिट्टी की किस्म किसी स्थान की फसल पद्धति को भी निर्धारित करती है। जैसे काली मिट्टी कपास की खेती करने के लिए अच्छी होती है। कहते हैं बढ़ते उत्पादन के फलस्वरूप वस्तुओं के परस्पर से लेन देन की गतिविधियों को बढ़ावा भी मिलता है, जिससे बड़े पैमाने पर व्यापार विकसित होता है। जल मार्ग की सुविधाओं से जो है संपन्न नदियां वाले क्षेत्रों में विकसित व्यापार और संचार नेटवर्क देखने में आए हैं। जातक और अन्य उपलब्ध जो है हमारी प्राचीन साहित्यिक पुस्तकों में प्राचीन भारत में अनेक जलमार्गों के होने के उपलब्ध जो उल्लेख मिलती है और इसी प्रकार समुद्र तटीय जो है जलमार्ग विभिन्न समुद्री देशों के व्यापार की प्रगति को बढ़ावा भी देता है। पहाड़ी मार्ग इस संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो पाल घाट द्रावण ने पूर्व और पश्चिम समुद्री तट को आपस में जोड़ा है और प्राचीन काल में भारत रोम व्यापार करने के लिए काफ़ी अनुकूल थी। तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ के पर्यावरण स्थिति ही उसको जो है बनाती है।
इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किसी क्षेत्र की जो है भौतिक विशेषता और पर्यावरण उस क्षेत्र की ऐतिहासिक प्रक्रिया का जो है खुलासा करने में काफ़ी सहयोग देते हैं। संसाधनों से जो है समृद्ध क्षेत्र महत्वपूर्ण थे, जबकि जहाँ इन संसाधनों की कमी रही वहाँ कम विकास हुआ, यानी जहाँ संसाधन नहीं वहाँ मनुष्य भी नहीं रहना पसंद करते हैं। यह समीक्षा जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि आवास पद्धति और जीविका का तरीका स्थानीय संसाधन के उपयोग पर निर्भर करता है, जिसके परिणाम स्वरूप पर जो है क्षेत्र का जो है तकनीकी विकास निर्भर करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आपके समक्ष प्रस्तुत था।